آج میں آپ کی ملاقات محنت شاکہ کا دوسرا نام محسن علی سے کراؤں گا۔ آج سے 12-13 سال قبل آج یہ جس کالج MAO کے لیکچرر ہیں، اسی کے پاس ہی یہ ویلڈنگ کا کام کیا کرتے تھے، تندور پر روٹیاں لگایا کرتے تھے۔ کہانی یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک کہانی ہے محنت کی، مشقت کی اور مشکلات، مصائب اور علم میں سے گزرنے کی۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں جو بھی لوگ نامور ہوئے ہیں وہ محنت اور مشقت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو شاید اللہ تعالیٰ کو یہ کام ویسے بھی پسند ہے، محنت اور مشقت، القاسب و حبیب اللہ۔ محنت مشقت کے ساتھ ساتھ پڑھائی، دن میں 2-4 گھنٹے سوتا تھا اور کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ ایک تو کمزوری ہو گئی تھی، دوسرا یہ کہ اس لیے بھی نہیں کھاتا تھا کہ نیند نہ آئے۔ تو یہی دونوں وجہ ہیں کہ وہ اپنی محنت کے ساتھ پڑھائی کو مینیج کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جی بالکل اٹ از اے سیلیبریشن آف ہارڈ ورک، اٹ از اے سیلیبریشن آف میرٹ، اٹ از اے سیلیبریشن آف ٹیلنٹ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اور ان نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ محنت کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا۔ آج میں آپ کی ملاقات محنت شاکہ کا دوسرا نام محسن علی سے کراؤں گا، جنہوں نے آج سے 13 سال قبل اپنی انتھک محنت سے پاکستانی ہونہار طلباء کو کامیابی کی ایک ایسی ڈیفینیشن سمجھائی کہ جس کو آپ بھی جان کر ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج سے 12-13 سال قبل آج یہ جس کالج MAO کے لیکچرر ہیں، اسی کے پاس ہی یہ ویلڈنگ کا کام کیا کرتے تھے، تندور پر روٹیاں لگایا کرتے تھے۔ اس وقت اپنی محنت کی معراج کو پا کر انہوں نے اپنی کامیابی کیسے سمیٹی اور آج یہ کس طرح ٹاپ آف دا ٹاؤن ہے۔ ان کی سکسس سٹوری کچھ اس طرح بھی منفرد اور مختلف اور قابل رشک ہے کہ ان کے لیے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے تقریب میں اپنی سیٹ چھوڑ دی، ان کی جانب آئے، ان کو گلے سے لگایا اور پھر اس وقت پورا پاکستان، تمام نوجوان اور تمام محنت کرنے والے طلباء ان کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے ہیں۔ ان کی یہ کامیابی کی کہانی ہے کیا؟ کس طرح انہوں نے 132 سالہ ریکارڈ توڑ کر کامیابی کے نئے زینوں پر اپنا رخت سفر باندھا؟ محسن بھائی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کی سٹوری ہے کیا؟ اب تو آپ انٹرویوز دے کر یقیناً بور بھی ہو چکے ہوں گے۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو۔ میرے لیے مونوٹنس اور ڈل اور ڈرائیو ایکٹیویٹی ہو گئی ہے۔ کہانی یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک کہانی ہے محنت کی، مشقت کی اور مشکلات، مصائب اور علم میں سے گزرنے کی، یا دوسرے لفظوں میں صبر یعقوب کی مانند صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ آج عزت اور احترام اور پیار محبت اس معاشرے سے دلوا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں جو بھی لوگ نامور ہوئے ہیں وہ محنت اور مشقت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو شاید اللہ تعالیٰ کو یہ کام ویسے بھی پسند ہے، محنت اور مشقت، القاسب و حبیب اللہ۔ تو ان دا سیم وے میں نے وہ کام کیا، وہ میرے لیے ایک نیچرل بات ہے، نیچرل ایکٹیویٹی ہے۔ آپ نے جس محنت کو کسب کیا اور اسی طرح لگے ہاتھوں دے مار 4.5 گولڈ میڈل پہ گولڈ میڈل اور پھر یہ 132 سالہ کامیابی کا ریکارڈ توڑنا، اس ساری چیزوں کو کس طرح کسب کیا؟ محنت مشقت کے ساتھ ساتھ پڑھائی، دن میں 2-4 گھنٹے سوتا تھا اور کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ ایک تو کمزوری ہو گئی تھی، دوسرا یہ کہ اس لیے بھی نہیں کھاتا تھا کہ نیند نہ آئے۔ تو یہی دونوں وجہ ہیں کہ وہ اپنی محنت کے ساتھ پڑھائی کو مینیج کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بڑی کامیابی سے نوازا۔ اور اس کو سوچا نہیں تھا، صرف ریڈنگ اور رائٹنگ کا شوق تھا، وہ کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح عزت اور احترام، محبت اور اتنی نعمتوں سے نوازے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جب دیکھا اور جب سنا آپ کو، اس کے بعد وہ فرط جذبات پہ قابو نہیں رکھ پائے۔ سر وہ لمحات کس طرح کے تھے؟ وہ تو ایک پراؤڈ مومنٹ تھے جس کو پوری دنیا کے میڈیا نے ہائی لائٹ کیا۔ وہ دراصل اس تقریب میں ان کو بھی نہیں پتا تھا اور مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ مجھے کسی نے وہاں پہ ایز اے اسپیکر، ایز اے سکسیس سٹوری کے طور پر انوائٹ کیا تھا، اور جب سٹیج پہ میری انہوں نے ڈاکومنٹری دیکھی اور پھر میں نے 1-2 اشعار پڑھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ میرے گاؤں میں مجھے مبارکباد دینے آ چکے ہیں۔ جب میں نے ٹاپ کیا تھا
तो मेरे गांव में मेरे माँ बाप को मुबारकबाद दी, लाहौर में घर भी दिया और 10 लाख रुपया भी दिया, और ताकि अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकूं। और वो ये कौन सी डिग्री की बात कर ये BA 12 में 2012 में जब टॉप किया था, BA में टॉप जी, किया था, और हिस्ट्री ब्रेक किए थे 132 साल रिकॉर्ड जो तोड़ा था। 688 मार्क्स है, वर हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ PU। और इसके अलावा आर्ट्स का तालिब इल्म होते हुए मैंने साइंस को भी बीट किया। आपको पता है आर्ट्स के होते हुए BSc या BA साइंस को, तो अल्लाह ताला ने ये हमारे नाम लिखना था। तो वहाँ पे फिर जब देखा कि वो आज MAO कॉलेज में लेक्चरर है, तो वो मियाँ साहब अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं रख सके, और मैं स्टेज से उतर कर अपनी चेयर पे चला गया। मुझे सिग्नल भी दिया, मुझे एंकर पर्सन ने भी कहा कि मियाँ साहब जो है ना वो आपको रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन उनका बड़ापन पहले की तरह वो मेरे पास, मेरी चेयर के पास आए और उन्होंने गले लगाकर गर्म जोशी के साथ, वो आप देख रहे हैं। पहली बार जब शहबाज शरीफ साहब आपके पास आए, आपको घर दिया, तब वो CM पंजाब थे। आज जब वो अपने नशिस्त को छोड़कर, जब वो पूरी की पूरी तकरीब के अंदर मरकज़ थे तवज्जो का, वो सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ है। सर ये ऑनरशिप है, और ये एक ऑनरशिप एक आम बंदे के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए, और एक मेहनत करने वाले तालिब इल्म के लिए। जी बिल्कुल, इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ हार्ड वर्क, इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ मेरिट, इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ टैलेंट। और मैं समझता हूँ कि कौम को और इन नौजवानों को चाहिए कि वो मेहनत करें। जब वो मेहनत करेंगे तो सिला अल्लाह ताला की ज़ात देते हैं। अब देखिए ना, हाज़रे दौरे अहद का हमारा प्राइम मिनिस्टर वो ख़ुद किस तरह सेलिब्रेट कर रहा है, किस तरह वो अप्रिशिएट कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है। तो इससे बड़ी इस कौम को के लिए और सबक हो नहीं भाई सकता। हमारे यहाँ ये होता है कि यूथ आइकन, उसको आजकल लोग कह रहे हैं जिसके कोई 1-1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हों या 1-1.5-2 मिलियन उसके फॉलोअर हों फेसबुक के ऊपर, वो यूथ आइकन है। एक्चुअली में जो अगर देखा जाए तो यूथ आइकन जो है वो तो आप जैसे लोग हैं। देखिए, मैं युवल नोह हरारी को पढ़ता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, ये रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो रियलिटी की दुनिया कुछ भी हो जाए, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो जो आप बता रहे हैं वो एक, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अप्रिसिएशन या कोई एक्नॉलेजमेंट है। मेरे अलावा बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए और जिनको मेरे ख्याल में इस माशरे को इनकरेज भी करना चाहिए। तो दुनिया असल तो यही है जिन्होंने कारनामा को किया हो। हम एम्फसिस करते हैं, सोसाइटी एम्फसिस करती है डिग्रीज़ पे, ग्रेड्स पे, एबिलिटी पे, बॉडी बिल्डिंग पे। तो ये अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है। ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है बट अनरियलिस्टिकली, वो मार्क मैनसन कहता है। लेकिन जो रियलिस्टिकल पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है वो आपका करैक्टर है। करैक्टर में क्या है? रेजिलियंस, करेज, डिसर्नमेंट, कर्टसी, फेयरनेस, ग्रेशियसनेस, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, ऑर्डलीनेस and thankfulness, tactfulness, thriftiness. These are the values values that are foundation of success, that is foundation of hard work, and that is the foundation of a big name or a well-known person. तो इसी वो मौलाना रूमी को देखें तो वो भी इन्हीं वैल्यूज़ की बात करता है। द आर्ग्यूमेंट एक बुक है द प्रोफेसर अख्तर रफ़ीक साहब की, उसमें भी वो कहता है कि हमारा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वो नहीं जो डार्विन ने दिया। हमारा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है करेज, लव, सेक्रीफाइस, पेशेंस। मैं उसको मैराथन पेशेंस कहता हूँ, सब्र यकूब आप कह लें। तो ये है वो वैल्यूज़ जिसमें आपको, मुझे, मीडिया को, उस्तादों को, हमारे जो रहनुमा हैं उनको स्ट्रेस देना चाहिए, डिसिमिनेट करना चाहिए, ट्रिकल डाउन करना चाहिए। कि मोहसिन अली को क्या पसंद है, मोहसिन अली खूबसूरती किस तरह की पसंद करता है, सिनफ़ जो आहन जिसको हम कहें या सिनफ़ नाजुक कहें, उस खूबसूरती को मोहसिन अली कैसे देखता है? मोहसिन अली के नज़दीक रोमांस क्या है? मैं जेन्युइन सा, और देख रहे हैं आप, मेरा यही गेटअप होता है, घर में हो या बाहर में हो। मुझे बुक्स बहुत पसंद है, रीडिंग और राइटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा मेरे जो ख्वाहिश है या ख्वाहिशात हैं वो नॉर्दर्न एरिया हो, वहाँ पे मेरे हाथ में किताब हो और मैं वो अपने शब व रोज़ इन्हीं में गुजार दूँ। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोमांस और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है। शादी पसंदगी की? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
पहले आपने भाभी जी को प्रपोज किया या उनकी जानिब से? दोनों तरफ से ही आप जो है ना। पहले बताया, अब ये भाभी जी ने देखना है, इसको हमने चलाना है, बार बार रिपीट पे चलाना जी है। मुझे उनकी तरफ से। उनकी तरफ से आया जी। घर में श्री फरहाद का किस्सा कैसे चलता है? ये बैटल ऑफ विट्स होती रहती है घर में भी, और कभी वो डोमिनेट कर जाते हैं, कभी मैं हो जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं डिफीटेड ही रहता हूँ। क्या कह रहा है, इस दुख में मैं आपके साथ बराबर का शरीक हूँ सर। मतलब इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, तो क्या कुछ कमा बना लिया है अब तक? कुछ भी नहीं कमाया, जो कमाया वो आपकी वो एक जादू की झप्पी है जो कमाई है, जादू की झप्पी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं आपके सामने हूँ, मेरा रहन सहन ऐसे ही है, मेरा घर भी ऐसे है और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही है। घर में आपको किताबें मिलेंगी, टीवी भी नहीं मिलेगा, तो ज़िंदगी इस तरह की जो है ना वो मेरी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं उसका लाख लाख शुक्र। अहले दिल हैं, मोहब्बत को करीब से जानते हैं, मोहब्बत का दर्स देते हैं। देखने वाले जो जवान हैं उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ मेंटोर से लोग भागते ही इसीलिए कि यार ये तो बोरिंग का मंबा होगा। उनको ये नहीं पता कि सोसाइटी में आप जैसे भी हैं। यूथ को चाहिए कि वो अजाम की तलखी को पीना सीखें, तलखियों के साए में जवां होना सीखें, ख़ज़ां के मौसम में हंसना सीखें, ख़ज़ां के मौसम में खिलना सीखें, और इन्हीं मौसमों में से भूख प्यास शिद्दत और धूप की सूरज की शिद्दत है या गर्मी की शिद्दत है या ज़िंदगी की शिद्दत है, इसमें जलते हुए अपने आप को बहार की आमदों और बहार की नवीद की पे ईमान उम्मीद यकीन रखें, तो ज़िंदगी आपकी यही है और यही रहेगी और यही इसी तरह चलती रहेगी। बिल्कुल जी, हकीकत को मलहूज़ खातिर रखते हुए साबित कदम रहें, मायूस ना हों और जहद करते रहें, और यही जहद मुसलसल है जो इंसान को कामयाबियों से हमकनार करती है। और इकबाल ने बहुत खूब कहा कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज हम आपकी मुलाकात फ़ख्रे पाकिस्तान मोहसिन अली साहब से करा रहे थे और इनकी जो ज़िंदगी की कहानी है वो हमने आप तक पहुंचाई। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।